Hello friends, a great welcome to the channel. Today we are going to cover such a novel which made the writer win the Sahitya Academy Award. Tamas we are talking about. It is a good example of partition novel. Tamas by Bhishma Sahani. This is what we are going to cover today in a great amount of detail. Let us know about Tamas. It was written by Bhishma Sahani as I told you and was awarded the Sahitya Academy Award in 1975. It was first published in 1974, was given the award in 1975, and in a fictional town, it described the riots in an Indian town. Although fictionalized version था, पर ऐसा बहुत कुछ रियलिटी में कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान में जरूर हुआ होगा. The novel was eventually made into a Doordarshan TV series as well with the same name Tamas and one of 4 hours feature film as well. Approximately 4 घंटे की एक मूवी और एक टीवी सीरीज में इस नॉवेल को कन्वर्ट किया गया था. गोविंद निहलानी जी जो कि तमस के डायरेक्टर थे, उन्होंने एक बार तमस के बारे में ये लाइंस कही थी. Having witnessed the partition, I was keen to make a film on this colossal human tragedy for a long time. उनको कभी भी इस बारे में मूवी बनाना मुश्किल नहीं लगा क्योंकि ये सब उन्होंने लाइव एक्सपीरियंस किया था. Although it was a very emotional thing to create, to experience all this trauma first and to create a movie on all those events. So I'll not say completely a fictional novel, a fictional movie based upon many true incidents joined together in a single movie, Tamas, single novel, Tamas. Let us know about Bhishma Sahani now. He was a Hindi playwright and actor also. He has himself acted in this movie Tamas. I'll tell you his role and will show his picture as well. So best known for this novel and television screenplay Tamas, which is a dramatic and emotional narrative of, as I've been telling you, India's partition. Tamas, I'll not say कि एक पर्टिकुलर फ्रंटियर प्रोविंस की कहानी है, लेकिन कहानी है हर उस विलेज की जहां पर पार्टीशन की वजह से दंगे हुए. It starts with a sweeper named Nathu जिसको ब्राइब किया जाता है, रिश्वत दी जाती है by a local Muslim politician कि आप एक पिग को मार दीजिए, मैं आपको कुछ पैसे दूंगा and the pig is needed for medical purpose. किसी तरीके से नाथू उस पिग को मारते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. The following morning, the carcass is discovered on the steps of the mosque and the town already tension ridden erupts. तो टाउन में तो पहले ही टेंशन चल रही है. आजकल हर जगह टेंशन चल रही थी क्योंकि 1947 पार्टीशन के आसपास का टाइम था. हिंदूज एंड मुस्लिम्स एक दूसरे के ऑलरेडी दुश्मन बने हुए थे. ऐसे समय में ऐसा कोई एक्ट हो जाए जिससे कि लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हो जाए तो दंगे और ज्यादा भड़क जाते थे. So enraged Muslims massacre scores of Hindus and Sikhs who in turn kill every Muslim they can find. मुस्लिम्स हिंदूज और सिख्स को मारते हैं और बदले में हिंदूज और सिख्स मुस्लिम को मारते हैं. एंड दिस इज हाउ द chaos and all the riots ensue. So in the very first scene of the movie, you will see Nathu Achamar is in struggle with pig. He wants to kill the pig because he has been offered some money. You can see here Nathu is really working hard and almost struggling and sweating in the process. Then we are shown the flashback scene ki how and why Nathu ended in this trouble that he had to kill a pig. Nathu Achamar was finishing his work one day in a shop when the ठेकेदार arrives and asks him कि medical purpose के लिए एक pig की जरूरत है और please आप उसे मार कर dead body हमें दे दीजिए and we will pay you handsome amount of money. नाथू सिर्फ एक स्वीपर था और साथ ही साथ एक चमार भी था जो कि डेड एनिमल्स की स्किन पर वर्क किया करता था, बट ही हैड नेवर किल्ड एनी एनिमल. सो नाथू डिक्लाइन कर देता है saying that he has never killed a pig before and I do not even have the skills to do it. But he says ki if you want the skin, I can provide you the skin and I can take the help of the piggery next door. But the ठेकेदार insists and gives Nathu 5 rupees. 1947. आपको लग रहा होगा भी 5 रुपए ही तो दिए थे. 1947, almost more than 70 years back.
₹5 की कीमत बहुत ज्यादा थी, दैट टू फॉर अ पुअर पर्सन। सो नाथू को ₹5 दे दिए जाते हैं, ठेकेदार चले जाते हैं और कहते हैं कि टुमारो आई विल कलेक्ट दैट carcass. After that, we are shown a Hindu political party which is led by Bakshi ji. Early next morning, Bakshi ji and few other members of a political party go to Muslim mohalla to clean drains. नालियां साफ करने के लिए जाते हैं। उनका पर्पस नाली साफ करना नहीं है, उनका पर्पस है अपने आप को प्रोपगेट करना। पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाते हुए वो चले जा रहे हैं यहाँ से वहां। दे आर रिसीव्ड एट दी मोहल्ला वार्मली। मोहल्ले के लोग तो बड़े वार्मली उनको ग्रीट करते हैं एंड दे आर ज्वाइंड इन बाय द रेजिडेंट्स आल्सो इन द क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ द ड्रेन्स। लेकिन हिंदू मुस्लिम्स के बीच में तो ऑलरेडी टेंशंस चल रही हैं। बख्शी जी को एक मुस्लिम पर्सन मिलते हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर मिलते हैं, जो कि कहते हैं कि आप हमारे मोहल्ले में आकर इस तरीके से घूम नहीं सकते और हमारे मोहल्ले में जो कुछ भी करना है, जो भी प्रोपेगेंडा करना है, जैसे भी प्रोपेगेट करना है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो हम करेंगे। यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग एट आवर प्लेस। अलग अलग रिलीजन की पार्टीज के मेंबर्स अभी एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि दे वॉच अ पिग कार्कस। उनको एक पिग की बॉडी नजर आती है। पार्टी मेंबर्स डिस्कवर दैट समवन हैज थ्रोन अ पिग कार्कस एट द स्टेप्स ऑफ अ मॉस्क। मस्जिद के बाहर पिग, बहुत बड़ा रिलीजियस स्कैंडल हो सकता था इससे। okay? तो इन दोनों को लगता है, बख्शी जी को और मुस्लिम लीडर जो कि हयात बख्श है जिनका नाम, इन दोनों को लगता है कि इससे तो पूरे एरिया में बहुत टेंशन फैल सकती है। ब्रिटिश राज अभी भी चल रहा था और वहां के डेप्यूटी कमिश्नर थे रिचर्ड। रिचर्ड के घर जाते हैं और रिचर्ड को अर्ज करते हैं कि कोई प्रिवेंटिव मेजर्स ऑलरेडी ले लिए जाएं, क्योंकि यहाँ जरूरी है ऐसे मेजर्स को लेना, अभी दंगे भड़कने ही वाले हैं। लेकिन रिचर्ड तो एक ब्रिटिश थे, पूरे ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ब्रिटिशर्स हमेशा से चाहते थे, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल द फिंगर्स आर अलाइक, बट ब्रिटिशर्स हमेशा से चाहते थे कि अगर इंडिया से जाएं भी तो यहाँ पर अच्छे से लड़ाई करवा के जाएं, इंडिया को पूरे तरीके से स्पॉइल करके जाएं। डिवाइड एंड रूल तो वो ऑलरेडी कर रहे थे एंड डिवाइड एंड डिस्ट्रॉय करके जाना चाहते थे। रिचर्ड कहते हैं कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, एक पिग से क्या होता है, एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाई peace and order will be disturbed by this event. But he was, although he was aware of all the Indian feelings, but he did not want to accept it. He wanted riots and chaos to take place. अब ना तो पूरे टाउन में ऐसी बातें सुन सुनकर बड़े परेशान हो जाते हैं, ऑल्दो ही इज नॉट श्योर कि ये पिग वही है जिसको मैंने मारा था या कुछ और है, कोई और पिग है। Nathu, having seen the pig's body at the mosque and having witnessed slight unrest in the town, wonders whether it was the same pig he had killed the last night or not. थोड़े से कंफ्यूज हैं और थोड़े से गिल्ट स्ट्रिकन भी हैं। नाथू जब घर वापस आ रहे होते हैं तो उसी ठेकेदार को देखते हैं जिसने नाथू को ₹5 देकर ब्राइब किया था। ही सीज द ठेकेदार इन द स्ट्रीट और ठेकेदार के पीछे भागते हैं। ही ट्राइज टू अप्रोच हिम बट ठेकेदार as soon as sees नाथू rushes off hurriedly, इधर उधर भाग जाते हैं जल्दी से नाथू को देखते ही ठेकेदार। और अब नाथू को पूरा यकीन हो जाता है कि दिस वाज डन ऑन पर्पस। नाथू को ऑफ कोर्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मेरी वजह से एक टाउन में इतनी ट्रबल हो गई है। He is now sure that it was the same pig and he feels terribly guilty and goes home and tells everything to his pregnant wife Kammu. नाथू और कम्मू अभी बात ही कर रहे होते हैं कि कुछ शोर उन्हें सुनाई देता है। वो खिड़की से बाहर देखते हैं तो देखते हैं कुछ घरों से धुआं उठ रहा है। So outside at a distance they see burning houses and नाथू जो कि बहुत ही इनोसेंट हैं, अपने आप को ही ब्लेम करते हैं कि आई एम द रीजन बिहाइंड ऑल दिस कम्युनल वायलेंस। इमेजिन अ सिनेरियो, एकदम से अपना घर छोड़कर सिर्फ ऐसा कुछ साथ में ले जा सकते हो जो आपके साथ आपके हाथ में आ सके। नॉट इवन अ कार यू हैव जिसमें आप थोड़ा सा सामान कैरी कर पाए। ऐसी सिचुएशंस लोगों के साथ होती थी। यहाँ पर एक पुअर पर्सन के साथ है, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते थे उस टाइम पर जो बड़े बड़े मेंशंस में, हवेलीज में, पैलेसेस जैसे घरों में रहते थे और इस तरीके से उन्हें सड़क पर आना पड़ा था। नाथू डिसाइड करते हैं कि अब अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और अपनी क्रिपल्ड मदर को लेकर कहाँ जाएं।
घर से तो जाना ही पड़ेगा। They did not know where they are going to, where they are heading to, but they decide that it is dangerous to stay at this place और अपनी crippled mother को अपनी बैक पर कैरी करके नाथू चल पड़ते हैं। नाथू की मदर की डेथ हो जाती है। वो इस हार्श जर्नी को टॉलरेट नहीं कर पाती हैं। किसी तरीके से आसपास के कुछ पेड़ों से लकड़ी को इकट्ठा करके उनका फ्यूनरल किया जाता है, लेकिन इट वाज नॉट अ प्रॉपर फ्यूनरल, जो कि बहुत पेन देता है नाथू को। एक और फैमिली हमें दिखाई जाती है, ये है हरनाम सिंह और उनकी वाइफ बंतु। अभी हरनाम सिंह का चेहरा हमें नहीं दिख रहा है, बट दिस इज द सेम पर्सन हु रोट दिस नॉवल भीष्म साहनी। So in a nearby village, Harnam Singh and his wife Bantu are the only Sikh family. ये भी बहुत बड़ा डेंजर हुआ करता था, which is actually illogical. आप हैं तो ultimately human ही, क्या फर्क पड़ता है आप एक सिख फैमिली हैं या मुस्लिम फैमिली हैं या हिंदू फैमिली हैं। लेकिन बड़ा ही डेंजरस माना जाता था। एक ऐसा मोहल्ला अगर है जहाँ पर 100 सिख रह रहे हैं और एक मुस्लिम, या 100 मुस्लिम और एक सिख, और इसी तरीके से किसी की भी माइनॉरिटी है, तो सबसे पहला अटैक उन पर होना बिल्कुल लाजमी था, बिल्कुल ऑब्वियस था। बोथ ऑफ देम आर आल्सो प्लानिंग टू गो टू देयर डॉटर्स प्लेस। उनकी डॉटर एक ऐसे प्लेस में रहती है जहां पर सिख मेजॉरिटी है। डॉटर का नाम है जसबीर। बहुत ही टाइम से वो अपने घर से निकल जाते हैं। जैसे ही घर से थोड़ा सा आगे जाने पर मुड़कर देखते हैं, उनके घर को जलाया जा चुका होता है। कैन यू इवन इमेजिन, कैन आई इवन इमेजिन कि अपने ही घर को जलते हुए देखना, दैट टू नॉट बिकॉज ऑफ एन accident, because of some deliberate human act. How painful these things are. चलते चलते बहुत थक जाते हैं, एक विलेज में पहुंचते हैं और एक दरवाजा खटखटाते हैं। कोइंसिडेंटली वो जा पहुंचते हैं एक ऐसे पर्सन के घर जो कि हरनाम सिंह के बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, एहसान अली। अब यहाँ पर इस नॉवल में ये दिखाया गया है कि कुछ भी मैटर नहीं करता था, ये दोस्ती, ये भाईचारा कुछ भी मैटर नहीं करता था। सबसे ज्यादा मैटर करता था हिंदू और मुस्लिम के बीच का तनाव। दिस हाउस बिलोंग्स टू अ मुस्लिम एहसान अली who has been a very good friend of Harnaam Singh since long. हरनाम सिंह को उनको देखकर खुशी होती है कि ये पर्सन हमें अपने घर में शरण दे देगा, बट वेरी ब्लंटली दिस पर्सन सेज कि आई एम नॉट किलिंग यू, दैट वाज मोर देन इनफ। हो सके तो यहाँ से जल्दी चले जाइए। Harnam Singh and Banto try to hide at the house during the day, but at night they are discovered by Ehsan's son and are asked to leave immediately. अब देखते हैं किस तरीके से हरनाम सिंह और उनकी वाइफ बंतो मिलते हैं नाथू और उनकी वाइफ कम्मो से। On their way the next morning, Harnam Singh and Banto meet Nathu and his wife in the forest, and they all go together to a gurudwara. एक गुरुद्वारे में जाते हैं जहां पर हरनाम सिंह और बंतो की डॉटर जसबीर भी है और बहुत सारे और सिख भी हैं जिन्होंने शेल्टर लिया है, यहाँ पर शरण ली है। आप देखते हैं उस गुरुद्वारे के आसपास क्या इवेंट्स चल रही हैं। दंगे हर जगह हो रहे हैं और मुस्लिम्स आर डिमांडिंग 2 लाख रुपीस फॉर द ट्रूस। अगर समझौता करना चाहते हो, अगर शांति चाहते हो, तो हम 2 लाख रुपए लेंगे। 2 लाख बहुत बड़ा अमाउंट, आज के करोड़ों के जितना अमाउंट है 2 लाख। दैट मीन्स एक बात अच्छे से समझ में आती है रीडर्स को, वॉचर्स को, कि क्या कोई रिलीजियस बेस था इन दंगों का। अगर रिलीजियस बेस था तो 2 लाख रुपए लेकर दंगे कैसे खत्म किए जा सकते थे। Let us see what is happening at this Gurudwara. At Gurudwara, we see Teja Singh, the leader of the Sikh Council, who informs the Sikhs that Muslims are continually collecting arms and Sikhs should do the same. कि मुस्लिम्स जो है वो हथियार इकट्ठे करते जा रहे हैं, सिख्स को भी ये करना चाहिए। और उसके बाद एक जूनियर ग्रंथी आता है गुरुद्वारे में और तेजा सिंह को इन्फॉर्म करता है कि मुस्लिम्स नो that Sikhs are outnumbered. Sikhs बहुत कम है मुस्लिम से नंबर में and are not sufficiently armed. So they are demanding कि हमें 2 लाख रुपए दे दिए जाएं, हम दंगा नहीं करेंगे। ग्रंथी को, उस जूनियर ग्रंथी को और नाथू को भेजा जाता है मुस्लिम से नेगोशिएट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। नाथू भी एकदम से तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरी ही वजह से तो ये सब कुछ हुआ है, ना मैं उस पिग को मारता ना ये सब होता। लेकिन नाथू जानते नहीं है, इतने भोले भाले हैं कि अगर पिग को वो नहीं मारते तो किसी और को ब्राइब किया जाता, ये तो होना ही था। तेजा सिंह एंड द सिख काउंसिल डीम द अमाउंट टू मच, ऑल्दो टू मच नहीं था उनके लिए, सिख कम्युनिटी के लिए।
and sent the Granthi and Nathu to negotiate with the Muslims. तेजा सिंह एंड द काउंसिल मेंबर्स वॉच फ्रॉम द टेरेस। टेरेस से देखते हैं कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं और अचानक देखते हैं कि नाथू और ग्रंथी पर पूरे मॉब ने हमला कर दिया, उन्हें घेर लिया है चारों तरफ से। जसबीर जो कि हरनाम सिंह और बंतो की डॉटर हैं, शी लीड्स द 6 women टू अ कलेक्टिव सुसाइड, जैसे कि पद्मावत मूवी में की गई थी, by jumping into a well. All the females in Padmavat jumped into a fire well and they are jumping into a normal well. Six, enraged by this, take up arms and go out to fight, shouting six slogans. Six भी सारे provoke हो जाते हैं और six slogans बोलते हुए बाहर जाते हैं back in the Gurudwara. Just B leads the Sikh women to a collective suicide by jumping into a well, and कुछ females के साथ तो उनके बच्चे भी उनके हाथ में थे। ऐसा सच में भी बहुत जगहों पर हुआ था। इससे पहले कि हमें assault किया जाए, सभी females को assault किया जाए, they preferred to die. अब सिचुएशन पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और सभी लीडर्स रिचर्ड से फिर से मिलने की कोशिश करते हैं और रिचर्ड एड्रेस करते हैं पूरे शहर की, पूरे टाउन के कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स को। So Richard in this scene is shown addressing prominent figures of the city where he informs all the gathering, all the people कि क्या क्या रिलीफ मेजर्स हमारे द्वारा लिए गए हैं जो कि बहुत पहले लिए जाने चाहिए थे but he did not. एंड ही प्रपोजेस कि हमें अब एक अमन कमेटी बनानी चाहिए कि घूम घूम कर अमन और शांति का प्रचार करना चाहिए। ये भी तो एक तरीका होता है ना अपने आप को शो करने का। अगर प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए जाते तो किसी को पता भी नहीं चलता। दंगे होने के बाद इतना सारा केओटिक सिचुएशन होने के बाद जब कोई बचाने आएगा ना, तब नाम ज्यादा होगा। दिस इज व्हाट द लीडर्स जनरली बिलीव इन। बख्शी जी एंड हयात बख्श आर मेड द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ द अमन कमेटी। एक बस को हायर किया जाता है, उस पर लिख दिया जाता है बड़ा बड़ा अमन कमेटी और अनाउंसमेंट करते हुए ये लोग यहाँ से वहां घूम रहे हैं। एट द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग ठेकेदार को भी देखा जाता है उसी अमन कमेटी में जो कि कम्युनल हार्मनी के नारे लगा रहे हैं। ठेकेदार द पर्सन हु इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दीज केओस। ठेकेदार उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि दंगों का मॉडल डिजाइन करते हैं। दंगे कभी भी ऑटोमेटिकली नहीं होते। थिंक अबाउट इट, मेरे जैसे आपके जैसे लोगों के पास किसके पास टाइम है कि सड़क पर उतरेंगे और किसी को मारेंगे बिकॉज ऑफ सम और दी अदर फीलिंग। दंगे मोस्ट ऑफ द टाइम डिजाइन किए जाते हैं, पे किया जाता है, जैसे कि हमारे इस ठेकेदार ने पहले नाथू को पे किया और फिर शायद बहुत सारे ऐसे मॉब को पे किया होगा जो कि दंगे करे, लोगों के घर जलाएं। I don't think no normal person ever gets out to go for these kind of creating these kind of chaotic situations. अब एक अलग ही hypocritic चेहरा सामने आ रहा है ठेकेदार का। He is moving in this town and he is trying to console the people. हरनाम सिंह, बंटो एंड कम्मो, इन सबको देखा जा सकता है रेफ्यूजी कैंप में और we have no information of नाथू yet. Harnam Singh, Bantu and Kamu are at the refugee camp and Harnam Singh requests a government employee to help find Nathu, who hasn't been seen since he went with the junior Granthi for negotiating with the Muslims. तो हरनाम सिंह वहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कहते हैं कि कम्मो इज लुकिंग फॉर हर हस्बैंड, जो गए थे नेगोशिएट करने के लिए मुस्लिम्स के साथ और अभी तक उन्हें कहीं भी देखा नहीं गया है। एम्प्लॉय उन्हें सजेस्ट करता है कि इंक्वायर एट द हॉस्पिटल टेंट वेयर ही माइट हैव बीन एडमिटेड और प्लीज हैव अ लुक एट द बॉडीज लाइंग इन द रूम। कम उनमें से एक बॉडी को आइडेंटिफाई करती है, दैट वाज द बॉडी ऑफ नाथू एंड शी ऑब्वियसली कोलैप्सेस एंड क्राइज। एकदम से कमो को शॉक लगता है एंड शी गोज इनटू लेबर। She goes into labor immediately and is taken to hospital tent by the nurses, and Harnam Singh and Banto are sitting outside the tent. Hear the newborn's cries from inside and they do hear the mixed slogans of Allahu Akbar and Har Har Mahadev coming from a distance. ये एक बहुत बड़ा सिंबोलिज्म है। वही लोग जो लड़ रहे थे, लड़वा रहे थे सबको, वही लोग अब एक होकर घूम रहे हैं और लोगों को भी पीसफुल रहने का संदेश दे रहे हैं। सच अ हिपोक्रेसी इट वाज।
कभी भी कोई भी chaotic सिचुएशन रॉयट्स दंगे होते हैं तो हमेशा कॉमन पर्सन पर उनका इम्पैक्ट आता है. दैट इज समथिंग वेरी ट्रू. Tamas is one of the most significant partition novels that narrates the horrors and atrocities of 1947 partition of India. मैं और आप तो यहाँ बैठकर इमेजिन भी नहीं कर सकते कि लोगों पर क्या बीता होगा. The book, written by Bhishma Sahni, is set in a small town in Punjab and depicts the struggles of ordinary common people and the religious conflicts between Hindus and Muslims. आप इसी नॉवल का एग्जाम्पल लीजिए ना. आपने देखा क्या किसी लीडर पर कोई इम्पैक्ट आया? बख्शी जी, हयात बख्श, रिचर्ड और ठेकेदार जिसने ये सब शुरू करवाया था? नहीं. पॉलिटिशियंस की लाइफ पर, लीडर्स की लाइफ पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता. एक पूरा का पूरा नेशन टूट कर रह जाता है और जो कॉमन कम्युनिटीज होती हैं, कॉमन फैमिलीज, वो अफेक्टेड रहती हैं किसी भी तरीके के दंगों से. इन दिस नॉवल वी हैव सीन कि किस तरीके से डर्टी अफेयर्स ऑफ पॉलिटिक्स जो हैं वो लोगों को इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि दे डू डिसइंटीग्रेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट्स. आर रॉयट्स प्लान बाय एडमिनिस्ट्रेशन? अपने व्यू पॉइंट्स को प्लीज कमेंट्स में लिखकर बताइए. I hope you understood the novel well. You may join the classes to cover all the topics of a particular subject in detail. Can click the link given in description to get connected to us for admission. Thanks for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comment.